Good morning, dear students. Chapter number 14, Oscillation. Today we have discussed a last topic of this chapter, natural oscillation, free oscillations and forced oscillation. टोटल ये चैप्टर के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस हैं. फर्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM. सेकेंड इज डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड थर्ड इज फोर्स्ड ऑसिलेशन. टोटल ये चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकेंड इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, थर्ड इज सिंपल पेंडुलम एंड फोर्थ इज फोर्स्ड ऑसिलेशन. Now today we have discussed a forced oscillation. First of all, what is natural oscillation? When an oscillator is slightly disturbed from its equilibrium position and released, it start oscillating, and the oscillations performed by it is absence of any types of resistant force are known as natural oscillation. See, definition में यहाँ पे लिखा है कि एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ रजिस्टिव फोर्स, एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ रजिस्टिव फोर्स, फॉर एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस फोर्स. बट एयर रेजिस्टेंस फोर्स तो कोई भी मीडियम में होगा ही. मीन्स नेचुरल ऑसिलेशन इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल. हम जितने भी ऑसिलेशंस करवा रहे हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी के अंदर सिंपल पेंडुलम का, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, नॉट नेचुरल ऑसिलेशन. क्योंकि नेचुरल ऑसिलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. वंस अगेन, व्हेन ऑसिलेटर इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड रिलीज्ड, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग. द ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय इट in absence of any types of resistive force is known as natural oscillation. The angular frequency is denoted by omega naught and frequency is denoted by f naught. F naught is the frequency for natural oscillation and omega naught is the angular frequency for natural oscillation. Next is free oscillation. When a system is displaced from its equilibrium position and released, it oscillations with its natural frequency, and this oscillation is known as free oscillation. Means angular natural oscillation and free oscillation दोनों एक जैसा ही है. और उसके बाद है फोर्स्ड ऑसिलेशन. जैसे ही कि आप कोई भी ऑसिलेशंस करवाओ, बट एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएंगे. ग्रेजुअली डिक्रीज, एम्पलीट्यूड बिकम्स डिक्रीज विद टाइम t. तो वो ऑसिलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो फोर्स होंगे, जो ऑसिलेशंस होंगे, इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन. सी, the oscillation executes by system under the influence of some external force. The oscillation executed by system under the influence of some external periodic force, and this type of oscillation is known as forced oscillation. The oscillations executed by system under the influence of some external force is called forced oscillation. And the angular frequency of forced oscillation is known as is denoted by omega d, and its angular frequency of external force. In practice, oscillations executed is always in some medium. जैसे अभी हमने बताया वैसे कोई भी ऑसिलेशन कोई मीडियम में ही होता है, और कोई भी मीडियम में ऑसिलेशंस होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ऑसिलेशन, and resistive force acting on oscillation means amplitude gradually decrease. तो वो ऑसिलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए some external force is required, and some type of damping force are always acting on the system, and eventually oscillations die with time. So to sustain the oscillations, external periodic force are required.
Example, when a child in garden swing periodically presses his feet against the ground, यानी हम पैर से जो धक्का लगाते हैं वो। अब उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करें। द फोर्स एक्ट ऑन ऑसिलेटर टू सस्टेन द ऑसिलेशंस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसका फॉर्मूला है एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट cos omega dt. So here different three types of force acting on the oscillator. One is restoring force, F is equal to minus kx. Resistive force, Fs is equals to minus bv. We know that. What is b? Damped coefficient. V for velocity. रिस्टोरिंग फोर्स तो प्रोड्यूस होगा ही। रिस्टोरिंग फोर्स हम चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़े, वर्क एनर्जी पावर में। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। रजिस्ट्री फोर्स F इज इक्वल टू माइनस बी वी। एंड थर्ड इज एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स इज एफ डी इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। तो टोटल फोर्स मीन्स सबका हम एडिशन करेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल्स टू एम ए, वी नो दैट। तो टोटल फोर्स मीन तीनों का हम एडिशन करेंगे, एफ एक्स प्लस एफ एस प्लस एफ डी। लेफ्ट हैंड साइड F इक्वल्स टू एम ए। ऊपर का जो तीनों का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। बट चैप्टर नंबर 3 एक्सेलरेशन हम पढ़े। एक्सेलरेशन मीन 2 टाइम्स डेरिवेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एंड व्हाट इज v फॉर वेलोसिटी, 1 टाइम डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम d। तो हम यहाँ पे 2 चेंजेस करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। राइट साइड जो 2 माइनस वाले स्टेप है उसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। सबका फॉर्मूला अप्लाई करो, m से डिवाइड करो, तो लास्ट इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स प्लस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम कॉस ओमेगा डी टी। एंड दिस आर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। हमने तीनों के डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव किए, फॉर एस एच एम, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। This oscillator initially oscillates with its initial angular frequency. ये जो ऑसिलेशन है वो स्टार्टिंग के अंदर नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करेगा, बट जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो ऑसिलेशंस होंगे वो ऑसिलेशन होंगे फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ। अब उसका पोजीशन का फॉर्मूला x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय, उसका फॉर्मूला थोड़ा हार्ड है ये ध्यान रखना, a इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर रेस टू हाफ। Remember it, omega is equal to natural angular frequency and omega d is equal to angular frequency by external force, तो ये एम्पलीट्यूड। इनिशियल फेज की बात करें तो इनिशियल फेज इज फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी नॉट by omega d x naught. V naught is the initial velocity and x naught is the initial position. V naught is the initial velocity at time t is equals to 0 and x naught is the initial displacement at time t is equal to 0.
तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड एंड फाई इनिशियल फेज. Now here different two special cases for amplitude. First case is, let's assume for small damping omega dB is less than m omega square minus omega d square. अगर डैम्पिंग बहुत स्मॉल है तो ओमेगा डी बी उसको हम निगलेक्ट करेंगे. तो आगे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके अंदर सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आएगा, ए इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर. जैसे ये जो फॉर्मूला था उसमें हमने ये सेकंड वाला स्टेप निगलेक्ट कर दिया, तो बाकी का पोर्शन रहेगा ए इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर. इसके अंदर भी अगर स्पेशल केस में हम एज्यूम करें कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी मीन्स external angular frequency is equal to natural angular frequency, so amplitude becomes maximum और उसका फॉर्मूला होगा A is equal to F naught by omega dB. सी सेकेंड केस के अंदर हम आगे वाला स्टेप निगलेक्ट करेंगे, ये वाला स्टेप निगलेक्ट करो तो A is equal to F naught by A is equal to F naught by ओमेगा डी बी फॉर्मूला आ जाएगा. तो ये दो स्पेशल केसेस थे. एंड रिमेंबर इट, इफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी, इफ एक्सटर्नल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम. एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन. इसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे. और ये उसका डायग्राम होगा. स्टार्टिंग के अंदर एम्पलीट्यूड कम है, फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, जैसे ओमेगा एंड ओमेगा बी वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा. एंड एग्जैक्टली ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा बी, देन एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम. द कर्व फॉर, यहाँ पे लिखा है द कर्व फॉर एम्पलीट्यूड ओमेगा बाय ओमेगा नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी एज शो इन द फिगर. द एम्पलीट्यूड बिकम्स इन्फिनिटी फॉर ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा व्हेन बी इक्वल्स टू 0. डैम्पिंग इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन ग्राफ डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. तो ये था डैम्प्ड ऑसिलेशन. रेजोनेंस, रेजोनेंस की डेफिनेशन, द phenomenon of increases in amplitude when the driving force is close to the natural angular frequency is called resonance. The phenomenon of increase in amplitude when the driving force is close to the natural angular frequency. Close to the natural angular frequency means omega is nearly equal to omega b. When amplitude become maximum, और उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस. तो ये था रेजोनेंस का डेफिनेशन. तो चैप्टर की थियरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई. 4 टॉपिक्स है चैप्टर के अंदर: सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, simple pendulum, and fourth and last topic is forced oscillation.